Hello and very good morning, students of class 10th. I hope you all are well. My dear students, yesterday I was sent you the recorded video of the class is around 1 p.m. So I hope you get the video as well. So dear students, do you have any problem till the point that I was discussed till yesterday? Do you have any problem? Tell me. No, sir. Confirm. Yes, sir. Okay. If you don't have any problem, so today I will just discuss last topic in unguided media, that is satellite microwave. So my dear students, satellite microscope is very interesting, and I promise you that you will learn very interesting thing in this type of communication. So I'm just share you the doc. Wait. Oh, wait for a second. You can see the doc, my dear students. Yes, sir. Okay. Good to know. Now the last communication is satellite communication. My dear students, first of all, we need to understand what is satellite. Do you know what is satellite? Students, can anyone tell what is satellite? I think it is a very basic question in science. All of you familiar with this? What is satellite? Students, can anyone tell what is satellite? Satellite क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? सर एक डिवाइस होता है, एक पेट में भेजा जाता है. हाँ, एक्चुअली सैटेलाइट की It is an object. Sorry. It revolves at orbit. Okay, actually सैटेलाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं an object which revolve around the planet is called satellite. An object which revolve around the planet is called satellite. An object, you can define a satellite, an object which revolve around the planets are called satellite. Called satellite. वो ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं. एग्जांपल के लिए, एग्जांपल क्या आगे देखते हो? अपने 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 अर्थ का सैटेलाइट क्या हो सकता है? बच्चों बताइए. बच्चों टेल मी, क्या हो सकता है? मून. यस, मून इज अ सैटेलाइट. मून भी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है लगातार. इतना तो पता ही होगा आप लोगों को. ठीक है. दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं. मैन मेड, two types of satellites. There are two types of satellites. पहला वाला है नेचुरल सैटेलाइट. Man made. Natural satellite. Last one is second, or you can say second one is man made. ओके, दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और मैनमेड सैटेलाइट. तो हम लोग जो कंप्यूटर साइंस में या जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट यूज करते हैं, वो कौन सा सैटेलाइट होता है? नेचुरल सैटेलाइट की मैनमेड सैटेलाइट? जल्दी बताइए. मैन मेड. वेरी गुड.
So the satellite that we are using in our data communication is man-made satellite. I hope you don't have any problem. So we are discussing about man-made satellite actually, and you know that NASA and ISRO, all these you can say that space agencies launch their satellites after the time traveling. I mean, after the passage of time, they all are launch their spaceships or launch their satellites. So you will get the लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. आप लोग जितने भी ये जो गूगल पे नेविगेशन देखते हैं, आप लोग रोड बताता है या वेदर फोरकास्ट आप देखते हैं, एकदम एक्यूरेट आपको मिल जाती है. तूफान आने वाला होता पता चल जाता आपको. ये सारी चीजें ये सैटेलाइट से ही पता चलती हैं. ठीक है, समझ में आई बच्चों? समझ में आई बात बच्चों? क्या Yes, sir. क्या करो बेटा? अभी मैं पूरी बात बताता हूँ, अपना थोड़ा धैर्य रखिएगा. ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा. शो सम पेशेंस एंड यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बेटा आज आप जितनी भी कम्युनिकेशन देख पा रहे हैं उसमें सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल है. वो बात अलग है, हमको पता नहीं चलता, कोई बताता नहीं सब बातें. ओके, तो आज हम लोग इस चीज को समझेंगे. तो सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम यूज्ड सैटेलाइट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल. माय डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम से सैटेलाइट में ही सिग्नल्स को सेंड और रिसीव किया जाता है. दिस सिस्टम नीड सैटेलाइट व्हिच आर इन द geostationary orbit which is 3600 किलोमीटर above the earth. मेरे बच्चों, ये आप एक फिगर दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. देखिए, ये सैटेलाइट है. यहाँ से हमारे दो एंटीनाज है. अर्थ, ये हमारी अर्थ है. यहाँ पे हमारी इस तरीके के एंटीनाज आपने देखे होंगे. ये एंटीना सिग्नल पहुंचाते हैं जहां ये सैटेलाइट तक पहुंचते हैं और ये सैटेलाइट से ये सेंड अप ये सिग्नल रिसीव होते हैं यहाँ पे इस एंटीना से. देख, समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ Yes. से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और यहाँ से रिसीव होते हैं. ये रिसीवर एंटीना है, ये सेंडर एंटीना है, और ये इसके बीच में मीडियम क्या, सैटेलाइट. सैटेलाइट के थ्रू ये सारे सिग्नल्स जाते रहते हैं. सैटेलाइट अपने जियो ऑर्बिट पे घूमता रहता है जिसकी अर्थ से दूरी अराउंड 36,000 किलोमीटर होती है. कितनी डिस्टेंस होती है? 36,000 किलोमीटर. ये सैटेलाइट लगातार घूमता रहता है. बच्चों समझ में इतनी बात आई नहीं आई? आगे इसी सैटेलाइट से ही लगातार वो लाइव फोटोज भी लेता रहता है, लाइव नेविगेट भी करता रहता है, सारा डेटा कलेक्ट करता रहता है. ओके, जिसमें वेदर की भी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रैफिक की भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे खुफिया देश पाकिस्तान उसकी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है. यू नो, इंडिया ने अपना एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है नाविक. पता होना चाहिए आपको, आईक्यू में क्वेश्चन आ सकता है. नाविक. ओके, इंडिया का भी अपना सैटेलाइट है, इसरो ने बनाया था. समझ आई बात? चलिए, खैर. Yes, sir. The satellite operates as a repeater will receive the antenna, transport and transmit of the signal. बच्चों, यही लगातार सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करता रहता है, यही इसका काम होता है. ठीक है, जो बातें समझने लायक वो समझ लीजिए आप. द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दिस सिस्टम इज बिटवीन 11 गीगाहर्ट्ज. GHz है तो उसका फुल फॉर्म होता है गीगाहर्ट्ज. 11 गीगाहर्ट्ज टू 14 गीगाहर्ट्ज. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लाई करती है इन बिटवीन 11 गीगाहर्ट्ज टू 14 गीगाहर्ट्ज. इस मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स, ये माइक्रोवेव्स, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करता है और रिसीव करता है. अ सैटेलाइट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नोन एज हाइड. है ना? मैंने आपको बताया था ये अर्थ के अराउंड घूमता रहता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज मोर फ्लेक्सिबल नाउअडेज. इट इज ऑफर मोर फ्लेक्सिबल देन केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन आजकल बहुत प्रेफरेबल है. प्रेफरेबल इसलिए क्योंकि ना इसमें आपको तार का खर्चा करना पड़ता है, ना आपको इसमें कोई कह सकते हैं कि ये कोई जल्दी तोड़ सकता है, ना वो खराब कर सकता है. आप सैटेलाइट में पत्थर मार सकते हो, तोड़ सकते हो सैटेलाइट. अब आप बताइए. No, sir. है ना? तो ना टूटने का खतरा है, ना कोई इसको खराब कर सकता है इजीली. है ना? तो ये अपने आप ही मतलब ये कह सकते हैं आपकी पहुंच से दूर है और आपको कम्युनिकेशन भी मिल रहा है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन भी कम है इसमें. तो ये ज्यादा सही चीज है. और जो देश होते हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी मिल जाती है. ठीक है, जो उनको चाहिए होती है.
So we can communicate with any point on globe by using the satellite communication. Have you got the point? ठीक है. Yes, sir. Now advantages of satellite communication. इसके फायदे क्या क्या है? The coverage area of the satellite microwave is more than terrestrial microwave. मैंने आपको terrestrial microwave बताया, इसमें बताया था 50-60 किलोमीटर के बीच में ये एंटीनास लगे होते हैं. जैसे ये देखा था आपने, एंटीनास लगे होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते रिसीव करते अर्थ में ही. मगर ये जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये उससे बड़े रेंज को कवर करता है, यानी ये लगभग पूरी अर्थ को कवर कर लेता है. पता आपको माय डियर Yes, स्टूडेंट? sir. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज इन मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन. मोबाइल और वायरलेस एप्लीकेशन में इसका बहुत यूज होता है, इंटरनेट में भी इसका यूज होता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट डिसएडवांटेज इज इट इज इजी टू इंस्टॉल. इसको इंस्टॉल करना इजी होता है. ठीक है, मतलब उसको मतलब लगाना इजी होता है. हालांकि तुम लगा नहीं पाओगे, इसके लिए तुम्हें पहले साइंटिस्ट बनना पड़ेगा. ठीक है, पर अभी के लिए मान लो इसका इंस्टॉलेशन इजी है. ठीक है, चलो इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या? सैटेलाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड हायर कॉस्ट. बेटा सैटेलाइट को बनाना और डेवलप करने में बहुत पैसा खर्च होता है, इतना इजी काम नहीं है. आपको पता है ये जो देख रहे हैं ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है, ये पूरा गोल्ड प्लेटेड होता है, गोल्डन गोल्ड. और इसमें जो सोलर पैनल लगे होते हैं वो भी बड़े कॉस्टली होते हैं. जो देख रहे हैं ब्लू कलर के सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं. उसमें गोल्ड का भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है, तो डेफिनेटली कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है और उसको बनने में बहुत टाइम लगता है. यानी ऐसा नहीं कि आज आप चाहो सैटेलाइट बनाना चाहो कल बन जाएगा, ये 1 महीने में बन जाएगा, टाइम लगता है. ओके. Second thing is the life of satellite is about 12 to 15 years. Due to this reason, another launch of the satellite has been planned before non-functional. My dear student, जब तक एक सैटेलाइट चल रहा होता है तब तक उसी सैटेलाइट को लॉन्च करना बेवकूफी माना जाता है. इसलिए 10 और एक सैटेलाइट की लाइफ जो होती है 10 से 12 से 15 साल होती है. ठीक है, इसके बाद ही कोई दूसरा सैटेलाइट भेजा जाता है, यानी 12 से 15 साल के लिए आप रिस्ट्रिक्ट हो गए. ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के. तो माय डियर स्टूडेंट समझ में इतनी बात आई? Yes, sir. बच्चों मैंने आपको नोट भेज दिए थे तो आपको उसको राइट डाउन करना है. आप लोग 1 सेकंड के लिए 1 मिनट रुक जाइए. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. ये देखिए, ये लाइव फिगर में दिखा रहा हूँ आपको. फिगर दिख रही है आप लोगों को? No, sir. Yes, sir. ये देख रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ये धरती पे एंटीना लगे हुए सेंडर और रिसीवर वाले, इन्हीं एंटीना से डेटा सेंड और रिसीव होता है. ठीक है, तो और इसी तरीके समझने के लिए ये भी देख सकते हैं. ठीक है, ये देखिए अर्थ स्टेशन है, ये सेंड करता है, ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है. हमारा ये सैटेलाइट जो है ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जो सिग्नल को रिसीव करता है बाद में कहाँ पहुंचा जाता है? आपके रिसीवर एंड तक, दूसरे चैनल तक. समझ आई बात? Yes, sir. तो इस तरीके से ही ये सारा वर्क करता है. चलो, तो समझ बच्चों इतना आपको समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया है तो बताइए. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया कोई डाउट वहां तक? कोई भी डाउट? No. कंफर्म? Yes, sir. तो बच्चों ये सारे नोट्स आप लोगों को नोटबुक आपने खरीद ली, परचेज कर ली है? No, sir. हाँ बेटा, काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफी काम दे दिया आप लोगों को. राइट, नोट्स मैंने सारे प्रोवाइड किए हैं और ये सारे के सारे नोट बेटा बहुत इजी लैंग्वेज में है. आपको किसी बुक में किसी इंटरनेट पे ये नोट्स नहीं मिलेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे. और मेरे ख्याल से मैंने जिन वर्ड्स का यूज किया वो भी बहुत ईजी है. ठीक है, इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है पर्सनल वाला, उस पर भी आप कभी भी कुछ पूछ सकते हैं. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी, मतलब मेरे बच्चों आप लोगों को सीखना है. ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है. आई एम विद यू. बताइए कोई डाउट? No, sir. मजा आ रही कंप्यूटर पढ़ने में? Yes, sir. कुछ सीखने को मिल रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है. तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं. और कोई डाउट नहीं है? राइट, नो Yes, सर. sir. चलिए ठीक है.
अभी तक कुछ भी नहीं पूछना उस दिन जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है ऑनलाइन। ठीक नो सर। ठीक है, तो बच्चों अब एक काम करिएगा, सारे नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा प्लीज। ओके, कल हम लोग टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टोपोलॉजीज के बारे में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय। हाय सर।